Uh, Welcome students. Today we will be understanding concept of center of mass. Center of mass, it is that point on a body where whole mass of a body is supposed to be concentrated. That means it is that point where I can balance out a body at a single point. Let us say I am going to balance out this pen. So at this point where this pen is balanced, I can say at this point where it is balanced, at this point center of mass of this pen is situated. It is not necessary that center of mass is at geometrical center. In case of uniform bodies of uniform densities, center of mass can be at the center, but if the density is non-uniform, center of mass will not be at the center. It will shift towards the body heavier portion. It will shift towards the heavier portion of a body. Let's go through the formulas. Position vector of center of mass m1r1, m2r2 till mnrn divided by total mass m1 plus m2 till m3. Velocity of center of mass m1 v1, m2 v2, mn vn, m1 plus m2 till m3. Likewise, acceleration of center of mass sigma miai divided by sigma mi, total mass. Distance moved by center of mass m1 delta r1, m2 delta r2, and so on, mn delta rn divided by m1 plus m2 plus m3 and so on, like this. For uniform body, uniform mass distribution, the formula, same formula changes, RCM RdM divided by integration of dm. So these are the formulas which we will be using to calculate center of mass of a given body. Let's take an example. Let us say this is my x-axis and this is my y-axis. I am having this L-shaped body, L-shaped mass distribution. Let us say this is my origin. This is, let us say, 2 centimeter, 1 centimeter, again 1 centimeter, and this is also 1 centimeter. So I have to calculate center of mass of this body. Now in that case I have to divide this body into 2 or more uniform bodies such that मैं individual bodies का center of mass calculate कर पाऊँ. So let me divide it like this. Now I have upper body, I have a lower body. These 2 points are center. ये जो point है, it is the center of this body. The lower point, it is the center of this body. Now इस point का x coordinate is 1 centimeter, it's 2, it's half, x coordinate is 1 centimeter, height is 1 centimeter, so y coordinate is 0.5. और let's talk about this point. इसका x coordinate is 0.5, y coordinate is 1 plus 0.5, 1.5, it's 1.5.
So x coordinate of center of mass is, in this case I can replace mass with area. I can very well replace mass with area. मैंने mass की जगह यहाँ पर area use किया है because the density is uniform, the thickness is uniform. So I can apply this formula A1x1 A2x2 upon A1 plus A2. जब भी डेंसिटी और थिकनेस यूनिफॉर्म है सिस्टम की, आप मास को एरिया से रिप्लेस कर सकते हो. तो A1, let us say this is my first body, this is my second body. A1 is area of this body. This is 1 centimeter by 1 centimeter, so area is 1 centimeter square. X1, the x coordinate is 0.5. A2, इसकी जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 1 सेंटीमीटर, सो एरिया इज 2 इंटू 1, 2 यूनिट्स, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. x2, दिस इज योर x2, दिस का x कोऑर्डिनेट इज 1 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, इट इज 2.5 डिवाइडेड बाई 3. सिमिलरली लाइकवाइज इसी तरीके से YCM, A1 Y1, A2 Y2, A1 plus A2. A1, let us say area is 1 unit, this is 1 unit, y coordinate is now 1.5, 2, y coordinate is 0.5 divided by 1 plus 2, 1.5 plus 1, 2.5 divided by 3. So x coordinate and y coordinate of center of mass, coordinates of center of mass is 2.5 by 3, comma 2.5 by 3. These are coordinates of center of mass. These are the coordinates of center of mass, right? This is a very important question which very usually बहुत जल्दी, बहुत रूटीन में आपके स्कूल एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है. Let's move on to another question. इसमें देखते हैं. Question number 2. Let us say we have a disk. एक डिस्क है हमारे पास. This is a disk. और इस डिस्क का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज, लेट अस से R. सेंटर ऑफ द डिस्क पे वी हैव केप्ट अनदर डिस्क, एक और डिस्क हमने रखा है सो दैट इनकी पेरीफेरीज आपस में टच करेगी. इस डिस्क का रेडियस, क्योंकि सेंटर से H तक है, तो ऑब्वियसली एक चीज क्लियर है कि इसका रेडियस इज R/2. थिकनेस इज सेम, दिस बोथ आर डिस्क, इनकी थिकनेस सेम है, इनकी डेंसिटी सेम है. आपको टेकिंग दिस point O, this point O as origin, आपको center of mass बताना है. Now let us say this is your bigger disk. The bigger disk का area is A1, that is pi r square. It is at origin. इसको हमने center का origin लिया है, तो x1 is 0. मुझे y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्क इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. x एक्सिस के जैसे डिस्क ऊपर है वैसे ही मास डिस्ट्रीब्यूशन नीचे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा. हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं. A2 इज एरिया ऑफ दिस डिस्क, लाल वाली, इसका एरिया क्या है, पाई, रेडियस है R/2, सो पाई R/2 का स्क्वायर, सो पाई r स्क्वायर बाय 4. x2 इसका सेंटर का, इसके कोऑर्डिनेट्स इज R/2, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0, तो x2 इज R/2. सो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास A1x1, A2x2, A1 plus A2, पाई r स्क्वायर 0, पाई r अपॉन 4, pi r square by 4 into r upon 2 divided by pi r square by 4. तो बच्चे ये आ जाएगा
पाई आर स्क्वायर आप काट दो, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास आया 0 r/8 1 प्लस 1/4 r/8 5/4 r/8 4/5 r/10। इसका आंसर आ गया r/10, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। इस क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं, हम इसको चेंज ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा। मैं अगर इसको ऐसे बोलूं, लेट अस से मेरे पास ये डिस्क है, ये सेम डिस्क है, इसमें से ये पोर्शन मैंने कट कर दिया, अब पहले रखा था, अब मैंने इसको कट कर दिया। जब मैंने कट कर दिया तो मेरे पास रिमेनिंग डिस्क ये है, दिस इज माय रिमेनिंग डिस्क, ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज माय रिमेनिंग डिस्क। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब ये रिमेनिंग डिस्क हमने इसको ऐसे रखी है तो हमने इस वाले एरिया को माइनस किया है, तो एज अ रिजल्ट A1 पाई आर स्क्वायर है, x1 0 है, सेम, बाकी डायमेंशन सेम है, r, दिस इज r/2 0, सेम, बिल्कुल सेम। A2 क्योंकि हमने माइनस किया है, इसमें से एरिया कट किया है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, x2 यू विल टेक इट इज r/2, सिर्फ A2 को माइनस लूंगा, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज A1 x1 A2 x2 A1 plus A2 pi r square into 0 minus pi r square by 4 into r/2 pi r square minus pi r square by 4। आप इसको कैलकुलेट करो, माइनस r/6, इसका आंसर आपको मिलेगा। सिर्फ ध्यान क्या देना है कि एरिया क्योंकि हम इसमें से कट कर रहे हैं, इस पोर्शन को माइनस कर रहे हैं, तो मैंने ये वाला एरिया ऊपर A2 नीचे A2, मैंने दोनों को माइनस लिया है। इस वाले पोर्शन में डिस्क के ऊपर डिस्क रखी हुई थी, तो मैंने A2 को दोनों जगह प्लस लिया है, मैंने A2 को माइनस नहीं लिया। जहां पर एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रखेंगे, हमारा एरिया ऐड हो जाएगा, बड़ी डिस्क में से छोटी डिस्क काट दोगे, आपका एरिया माइनस हो जाएगा, राइट? ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन उठाते हैं। लेट अस से दिस इज a gravity free hall, this is a gravity free hall। इस हॉल में we have a plate of mass capital M, this is a bigger plate, बड़ी प्लेट है। इसके ऊपर हमने एक आइस क्यूब रखा है, आइस क्यूब, इस आइस क्यूब का मास स्मॉल m है, क्यूब है, क्यूब, लेंथ L, ब्रेड्थ L, थिकनेस L, एक आइस क्यूब रखा है हमने। इस आइस क्यूब अब हो क्या रहा है, नाउ दिस आइस क्यूब इज मेल्टिंग डाउन, सो यू हैव टू कैलकुलेट द शिफ्ट चेंज इन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। नाउ एक चीज समझे, सिंस इट इज अ ग्रेविटी फ्री हॉल, ग्रेविटी इज जीरो है। जब ये आइस मेल्ट होगा तो मेल्ट होने के बाद क्या होगा कि ये जो ट्रे है इसका मास कैपिटल M है। वैसे तो ये वाला मास कम है इसके कंपैरिजन में, पर ये मेल्ट होके सरफेस टेंशन की वजह से ड्रॉप की शेप ले लेगा, स्फेयर बन जाएगा, जो लिक्विड है एक स्फेयर की फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से इट विल फॉर अ गिवन वॉल्यूम इट विल ट्राई टू अटेन मिनिमम एरिया। एक मिनिमम एरिया अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये एक मिनिमम
एरिया अटेन करेगा, जिसकी वजह से ये क्यूब स्फीयर में चेंज हो जाएगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास का चेंज होगा, पहले यहाँ था इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे है। ये चेंज निग्लिजिबली स्मॉल होगा, क्योंकि इसका मास, इस ड्रॉप का मास, इस आइस क्यूब का मास भी निग्लिजिबल है, इसका चेंज भी निग्लिजिबल है। तो ओवरऑल वी कैन से, हम ऐसा कह सकते हैं कि चेंज इन सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, चेंज इन सेंटर ऑफ मास इज 0, ऐसा हम कह सकते हैं इन दिस केस। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं। बदलना क्या है कि हमने ग्रेविटी हटा देनी है, हमने ग्रेविटी हटा देनी है। अगर मैं ग्रेविटी को हटा देता हूं तो भी क्या ये चेंज 0 होगा? अगर मैं ग्रेविटी हटा देता हूं तो भी क्या ये चेंज 0 होगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अब ये आइस मेल्ट होगी और आइस मेल्ट होकर ये नीचे की तरफ आएगी और ये पानी ट्रे में जमीन के साथ फैल जाएगा एक जैसा। जब ये फैलेगा तो हमारे पास इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, अब क्यूब का सेंटर ऑफ मास ट्रे के पास आ गया। कितना चीज शिफ्ट हुआ नीचे? नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ L/2, नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ L/2। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा YCM, कैपिटल M मास ऑफ ट्रे, डेल्टा Y1 ट्रे का मास में शिफ्ट, सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट, M डेल्टा Y2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। नाउ डेल्टा Y1 कितना है? डेल्टा Y1 इज 0। ट्रे का सेंटर ऑफ मास ट्रे के सेंटर में था पहले, बाद में भी ट्रे के सेंटर में है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। स्मॉल m माइनस L/2, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस ML डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट। अगर ये ग्रेविटी वाला हॉल है, ग्रेविटी इस हॉल में 0 नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास इतना शिफ्ट होगा। सॉरी, अगर ग्रेविटी है तो सेंटर ऑफ मास इतना शिफ्ट होगा, और अगर ग्रेविटी नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट निग्लिजिबल होगा, हम 0 मान लेंगे। ठीक है, ओके। एक और सवाल देखते हैं। लेट अस से ये एक बोट है, ये एक बोट है, ये बोट पानी के ऊपर है, इट इज फ्री टू मूव। इस बोट का मास लेट अस से 40 kg है। यहां पर ए इसका मास 50 kg है, बी जिसका मास लेट अस से 60 kg है, इसकी लेंथ 4 मीटर है। ये दोनों बोर हो रहे हैं, तो इनको गप्पे मारने के लिए बीच में एक टेबल पड़ी है, ये यहाँ से आता है उठ के टेबल पे बैठ जाते हैं ए भाई साहब, बी भी यहाँ से आके टेबल पे बैठ जाते हैं। अब ये यहाँ पर बैठ गए इधर आके, तो बोट ने कितना डिस्टेंस मूव करेगा इस प्रोसेस में, ये आपको बताना है। तो अगेन जब शिफ्ट की बात करूंगा तो मैं फॉर्मूला डेल्टा वाला यूज करूंगा। लेट अस से डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास is equal to m1 ma delta xa mb delta xb। बोट को मत भूलना, मास ऑफ बोट डेल्टा x बोट का डिवाइडेड बाय ma mb मास ऑफ बोट। 20 बोट वाला मैंने पूरा लिखा है, 20 बॉय का मास है। मास ऑफ ए इज 50 kg। इसने डिस्टेंस मूव किया है, सेंटर पे है, टोटल 4 मीटर है, सेंटर पे स्टूल पड़ा है, 2 मीटर मूव किया तो +2। मास बी का मास 60 kg है, इसने कितना मूव किया इस तरफ, -2 मीटर, ये भी सेंटर पे आया। बोट का सेंटर ऑफ मास पहले भी बोट के सेंटर पे था, मैं बोट के सेंटर को रेफरेंस ले रहा हूँ 40, तो उसको 0 अगर मैं उसको रेफरेंस लेता हूँ
तो 50 प्लस 60 प्लस 40, ये कितना आया 100 में से 120 माइनस की 100 माइनस 120 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 150। आपने डेटा सारा मीटर में लिया है तो ये मीटर में आ गया, डिस्टेंस मूव बाय सेंटर ऑफ मास। बाकी अगर मुझे डिस्टेंस मूव बाय बोट बताना है, डिस्टेंस डेल्टा एक्स, कंबाइंड सिस्टम बोट, कंबाइंड सिस्टम बोट ने कितना डिस्टेंस मूव किया पानी के ऊपर, तो वो प्लस 20 बाय 150 होगा, वो ऑपोजिट होगा। क्यों ऑपोजिट होगा? क्योंकि अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से अगर मैं बोट पे आगे चलने की कोशिश करूंगा तो बोट पीछे सरकती है, मैं बोट से जंप करके अगर शोर पे आता हूं तो बोट पीछे जाती है, मैं इधर गया बोट पीछे, राइट? तो दिस वाज द होल एक्सप्लेनेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। आपके कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।